آج وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ آج وہ پورے 4 سال بعد واپس پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن میں اسپیشلائزیشن کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کی تو کوئی حد نہ تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور سب سے زیادہ خوش تو وہ اپنی بیسٹ فرینڈ سے ملنے کے لیے تھا۔ جب وہ گیا تھا تب وہ محض 16 سال کی تھی اور اب وہ 20 کی ہو چکی ہوگی۔ وہ 22 سال کی عمر میں گیا تھا اور اب 26 سال کا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ چلے گئے تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اور واقعی گزرے 4 سالوں میں اس نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، اور جب بھی وہ شاہ ولا میں فون کرتا تو تقریباً سب سے اس کی بات ہو جاتی، بس ایک واحد وہی تھی جس سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ سب کو سرپرائز دینے کے لیے خود ہی کیب میں شاہ ولا تک آ چکا تھا، کیونکہ وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ اس نے خود ہی نہیں بتایا تھا، وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گاڑی شاہ ولا کے باہر آ کر رکی تو وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو اس کی پیمنٹ کرتے اس نے اپنا بیگ گاڑی سے نکالا اور شاہ ولا میں داخل ہوا۔ 4 سالوں بعد اپنے گھر آ کر اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نوشین بیگم شیزا بیگم سے کوئی بات کر رہی تھیں اور اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 4 سالوں بعد اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ اسے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ بیگ وہیں چھوڑے قدم قدم چلتا ان تک پہنچا۔ نوشین بیگم کی اس کی طرف کمر تھی، لیکن شیزا بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ خوشی سے کچھ بولتی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اتنی ہی آہستگی سے وہ دوبارہ چلتا اپنی ماں تک پہنچا اور انہیں پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ماما، ان کے کان میں بہت آہستہ سے سرگوشی کی اور نوشین بیگم ساکت رہ گئی۔ انہیں یقین نہ ہوا جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی آواز سنی۔ ان کا پورا جسم کپ کپا اٹھا۔ وہ بے یقینی سے پلٹیں تو ان کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ نوشین بیگم کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھی۔ میرا جگر، میرا لال، تم واقعی آ گئے؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ ہاں ماما، میں واقعی میں آ گیا ہوں، وہ دلکشی سے مسکرایا، اور نوشین بیگم اب تک بے یقین تھی۔ انہوں نے کتنی بلائیں لے ڈالی تھی، کتنی ہی دیر سینے سے لگائے اسے پیار کیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، آ رہے تھے اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ماں کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں نے سوچا اپنی ماں کو سرپرائز کرتا ہوں، تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ انہیں اپنے سینے سے لگاتا وہ مسکرایا۔ اس سارے بنگلے میں صرف وہی ایک تھا جو بہت شرارتی تھا، اور نم آنکھوں سے وہ مسکرا دیں۔ انہوں نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ بہت اچھا لگا، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ تمہیں دیکھنے کے لیے تو میری آنکھیں ہی ترس گئی تھیں۔ اس کے ماں کے لہجے میں صاف تکلیف تھی جو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ فکر مت کریں، اب کہیں نہیں جاؤں گا، اب تو آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اب یہیں پر ہاسپٹل میں جاب کروں گا، وہ مسکرا رہا تھا۔ نوشین بیگم کچھ پیچھے ہوئیں تو شیزا بیگم فوراً آگے بڑھیں اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ تمہیں میں نے کتنا یاد کیا، وہ بھی غمگین تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا ہے خالہ۔ شیزا بیگم اور نوشین بیگم دونوں بہنیں تھیں، دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کی چاچی بھی تھیں اور خالہ بھی۔ اور بتائیں باقی سب کہاں ہیں؟ ان سے ملنے کے بعد وہ انہی کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ سارے مرد حضرات اپنے کاموں پر گئے ہوئے ہیں، اور لڑکیاں، وہ بے چینی سے بول اٹھا تو دونوں نے مسکراہٹ دبائی، لیکن شیزا بیگم رنجیدہ ہوئی۔ حیزل اپنی یونیورسٹی گئی ہے، اور وہ خاموش ہو گئی، لیکن سامنے بیٹھا یہ شخص جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ اور کیا خالہ، آپ کیا بولنے والی تھی؟ اس نے بے تابی سے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنی ماں اور خالہ دونوں کی طرف دیکھا تو دونوں کے چہروں پر گہرے چپ کے سائے تھے۔ اچھا بتائیں فری کہاں ہے؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا تو ایک لمحے کے لیے شیزا بیگم کا دل کانپا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں، انہوں نے کپ کپاتی آواز میں بتایا تو راحم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ گھر میں ہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، اسے بھی سرپرائز دوں گا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ خوشی خوشی صوفے سے اٹھا۔ اس سے پہلے وہ قدم آگے بڑھاتا اس کا ہاتھ شیزا بیگم کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ مت جاؤ راحم، وہ تم سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ راحم حیران ہوا اور اسی سنجیدگی سے واپس بیٹھ گیا۔ اچھا تو مطلب مجھ سے اب تک ناراض ہے وہ؟ کوئی بات نہیں، اس نے بات کو مذاق کا روک دیا۔ فکر مت کریں خالہ، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، اب مجھے معاف کر دے گی، وہ مسکرایا۔ لیکن ان دونوں عورتوں کی آنکھوں میں تکلیف تھی جسے محسوس کرتے راحم بے یقینی سے سیدھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ دونوں مجھے کیوں پریشان لگ رہی ہیں اس وقت؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟
उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा हुआ है। फरी किसी से बात नहीं करती है, वो खामोश हो गई है। नौशीन बेगम के अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो राहिम को अपने कानों में जाता महसूस हुआ। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा, ज़रा खुलकर बताएं। उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो उसकी माँ ने उसे बताया, उसे सुनते राहिम बेयकीन और सुन रह गया था। उसे लगा अब वो कभी हरकत नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकले। ऐसा कैसे हो सकता है? वो 4 सालों से एक लफ्ज़ नहीं बोली। वो बेयकीनी से सोफे से उठा। उसके कदम हरकत करने से इनकारी हुए। वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ चला। अपने कमरे में जाने से पहले उसने दूसरे फ्लोर पर एक नज़र डाली। फरियाल के बंद कमरे को देखा। आंखों के सामने बहुत सारे मंजर नुमायां हुए। उसे याद आया ये 10 साल पहले की बात थी। वो स्टडी रूम में बैठा था। जब वो स्टडी रूम में दाखिल हुई, राहिम अपनी पढ़ाई संजीदगी से कर रहा था। जब उसने कनखियों से देखा कि फरियाल शेल्फ से बहुत सारी किताबें निकाल रही थी। फरी, ये तुम क्या कर रही हो? उसने संजीदगी से मुखातिब किया तो वो उसकी तरफ पलटी, बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। कितनी बार कहा है मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे फरी मत कहा करें। उसका इतना क्यूट फेस देख राहिम को हंसी आ गई। तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें प्यार से फरी कहता हूँ मैं, और कहता रहूँगा। क्या मसला है तुम्हें? उसने भी हैरत से पूछा तो वो बिना उसकी बात का जवाब दिए वापस किताबें निकालने लगी। अच्छा बताओ ये क्या कर रही हो? वो कदम कदम चलता उसके पास आया। नज़र नहीं आ रहा किताबें निकाल रही हूँ? उसने देखा वो सारी इंग्लिश किताबें निकाल रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इन्हें नहीं पढ़ पाओगी। वो हैरत से इतनी मोटी मोटी किताबों को देखकर बोला। अरे नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब पढ़ूंगी ना, फिलहाल इन्हें निकाल कर रख रही हूँ। उसकी इतनी अजीब साइंस पर राहिम को हंसी आई। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी क्यों निकाल रही हो? वो जैसे जानना चाहता था कि अभी अभी इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि बाद में ये खो ना जाए। और राहिम दिल खोल कर हंसा। उसे इतनी हंसी आ रही थी कि बहुत। वो किताबें इसलिए निकाल रही थी कि कहीं गुम ना हो जाए। ये किताबें स्टडी रूम से कहाँ जाने वाली थी? जब वो हंसता रहा तो फरी ने उसे गुस्से से घूरा था। बहुत हंसी आ रही है ना मेरी बातों पर? एक वक्त आएगा जब मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी, तरस जाएंगे फिर मेरी आवाज़ सुनने को। वो गुस्से से कहती हुई दरवाज़ा ज़ोर से मारती स्टडी रूम से बाहर निकल गई। लेकिन उसके उस दिन के अल्फाज आज राहिम को अपनी रूह झुलसाते महसूस हुए। उसका दिल चाहा वो भागकर कमरे में जाए और फरी को देखे, उससे बात करे, लेकिन अपने शिकस्ता वजूद को घसीटता वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। ये शाह विला था जिसमें बसता था बुरहान शाह का ख़ानदान। वो 4 भाई थे। सबसे बड़ा भाई बुरहान शाह था जिसका एक ही बेटा था। उससे छोटे भाई थे ज़ीशान जिनका भी एक ही बेटा था, अरमान। उससे छोटे इब्राहिम शाह जिनके 2 बच्चे थे, दानियाल और फरियाल। और उससे छोटी इर्तज़ा जिसका एक ही बेटा था, राहिम। और उनके अलावा उनकी एक फुफ्फो थी जिनका इंतकाल हो गया। उनकी बेटी हेज़ल भी यहीं रहती थी। वो दानियाल की मनकूहा थी। 4 साल पहले जब अरहम यहाँ से गया था तब फरियाल बिल्कुल ठीक थी, लेकिन न जाने 4 साल में क्या हुआ कि वो खामोश हो गई। वो किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि 4 सालों से किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। और ये सब 4 साल पहले हुए एक हादसे की वजह से था। लेकिन सब उसकी खामोशी को हादसा समझ रहे थे। लेकिन उसकी खामोशी के पीछे हादसा नहीं था। उसकी खामोशी के पीछे तो कोई गहरा राज था जो कोई भी नहीं जानता था सिवाय फरियाल के। वो अपने कमरे में आने के बाद काफ़ी देर फरियाल के बारे में ही सोचता रहा। फिर लंबे सफ़र से आया था, थकन की वजह से नींद आ गई। रात के साए फैल चुके थे। उसने कुछ नहीं खाया था। जो हालत फरियाल की सुनकर आया था उसके बाद उसकी भूख चैन सब उड़ गया था। रात को 10 बजे जब वो किचन में दाखिल हुआ, उसने सोचा कि कॉफ़ी बनाकर पी लूँ। वैसे भी लंदन जैसे मुल्क में रहने के बाद वो अपने सारे काम अब खुद करने लगा था। खाना बनाना जैसे अब उसके लिए मुश्किल नहीं रहा था। वो किचन में खड़ा कॉफ़ी बना रहा था जब उसने देखा कि किचन में कोई दाखिल हुआ। राहिम की नज़र उस तक गई। वो जो सरसरी सा देख रहा था, अगले ही पल उसकी निगाहें साकित हुई। वो फरियाल थी। उसके लंबे बाल कमर से भी नीचे आ रहे थे, जिनकी ढीली सी चुटिया कर रखी थी। दुपट्टा गले में डाले उसने फिरोज़ी रंग की शर्ट और वाइट ट्राउज़र पहना था। वो किचन में राहिम की मौजूदगी से बेखबर जग से पानी का गिलास भरती अपने ध्यान में खड़ी थी। जब वो कदम कदम चलता उस तक पहुंचा, फरी, उसने बहुत मोहब्बत से उसे पुकारा। और उसकी पुकार पर वो इतनी घबराई कि हाथों से गिलास छूटता ज़मीं बोस हुआ। उसकी चीख निकलती रह गई और राहिम ने बहुत गौर से उसका ये रवैया देखा।
उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे अपनी चीखों का गला घोंटा, जैसे वो अपनी आवाज़ को हलक में दबा देना चाहती हो। उसने अपनी आवाज़ को रोक दिया। बेयकीनी से वो पलटी और पूरे 4 साल बाद अरहम को अपनी निगाहों के सामने देख पहले तो वो साकित रह गई। वो पहले से ज़्यादा दिलकश हो गया था। हैंडसम तो वो 4 साल पहले भी बहुत था। कैसी हो तुम? उसने बेबसी से पूछा था। तो फरियाल ने महज सर हिलाने पर इत्तफा किया। राहिम ने बहुत गौर से उसकी आंखें देखी। उसकी आंखों में कुछ था, कोई तकलीफ। बेबसी, मुझसे बात नहीं करोगी क्या? उसने तकलीफ दे लहजे के साथ पूछा तो वो एकदम खामोश हुई। इस बार उसने अपना सर ना में हिलाया और ना हाँ में। राहिम ने मजीद एक कदम उसकी तरफ लिया। वो बिदक कर दूर हटी और उससे पहले कि वो किचन से बाहर निकलती, राहिम ने अपने बाजू के इशारे से उसे रोक दिया। रुको, पानी तो पी जाओ। उसने दूसरे ग्लास में पानी उड़ेलते फरियाल की तरफ ग्लास बढ़ाया तो फरियाल ने बिना कुछ कहे ग्लास पकड़ा और 2 घूंट पानी पीती। ग्लास वहीं छोड़ती फौरन वहाँ से भागी, जिस तरह राहिम से दूर जाकर छुप जाना चाहती हो। और राहिम ने बेयकीनी और बेबसी से उसे देखा। वो ऐसी नहीं थी। इसे क्या हो गया था? वो क्यों नहीं बोली? बेशुमार सवालात थे जो उसकी आंखों में थे, लेकिन वो उससे पूछ भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ वो कमरे में दाखिल हुई और कमरे के दरवाजे को अच्छे से लॉक किया। वो सर से लेकर पैर तक खौफ से कँपकँपा रही थी। वो फौरन वॉशरूम में भाग गई। जाकर वॉशरूम लॉक किया और बेबसी से ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बहुत ज़ोर से अपने दोनों हाथ होंठों पर रखे थे कि उसकी हिचकियों और सिसकियों की आवाज़ भी ना निकले। कानों में किसी की गरजदार आवाज़ गूंज रही थी। अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो तुम्हारा सारा घर, वहाँ बसने वाले सारे लोग तबाह हो जाएंगे, सब मरेंगे और उनकी मौत की ज़िम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। फरियाल इब्राहिम शाह। वो राहिम से बात करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकती थी। बहुत बेबस, मजबूर और लाचार थी। जब उसने खूब सारा रो लिया तो ज़मीन से उठी, वॉश बेसन तक आकर अपना चेहरा धोया। इसके बाद वहीं मौजूद एक छोटी सी अलमारी खोली। वहाँ एक तस्वीर पड़ी थी, 2 लड़कियों की तस्वीर। एक 16 साल फरियाल थी और दूसरी एक खूबसूरत लड़की थी। मुझे माफ़ करना ज़ैनी, मैं तुम्हारे कातलों से बदला नहीं ले सकी। मैं बहुत कमज़ोर और मजबूर हूँ। उसने इतनी आहिस्ता सरगोशी की, बमुश्किल उसके अपने कान ही सुन पाए थे। वो उस लड़की की तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। तुम्हारी मौत का बदला लेते मैं अपने पूरे ख़ानदान को नहीं मरवा सकती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। वो उस लड़की से माफ़ी मांग रही थी। आखिर हुआ क्या था माजी में? उसने फ़ौरन वो तस्वीर वापस रखी। वो इस तरह डरी हुई थी जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो डर गई थी जैसे कोई उस पर नज़र रख रहा हो। दोबारा अपने चेहरे से आंसू पोंछती उसने खुद को एक नज़र शीशे में देखा। 20 साल फरियाल इब्राहिम शाह खूबसूरती की मिसाल थी। उसकी गहरी भूरी आंखें, उसका दूधिया सफ़ेद चेहरा, उसके खूबसूरत नक्श नैन। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो खामोश क्यों थी? ये एक राज बन गया था। उसने अपनी शर्ट अपने बाएं कंधे से ज़रा सा सरकाई तो वहाँ एक चोट का निशान था, जैसे किसी ने चाकू मारा हो, और फिर उस जख्म को कुरेद दिया। उस निशान को देखते फरियाल दोबारा रोने लगी। फिर उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, अगर आज के बाद अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म पर इस तरह के बेशुमार निशानात बनाएंगे। उस शख्स का लहजा आज भी फरियाल को खौफज़दा करता था। वो अपने ही घर में महफूज नहीं थी। वो अपने भाई, अपने बाप को बताना चाहती थी कि वो कितनी बेसकून है। उसने इन 4 सालों से सुकून से सोकर नहीं देखा, लेकिन वो मजबूर थी, लाचार थी, बेबस थी, किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। सारे घर वालों ने कोशिश कर ली कि वो थोड़ा बहुत तो बोले, लेकिन वो नहीं बोली। इतनी खामोश हो गई थी वो कि 4 सालों से किसी ने उसे बोलते नहीं देखा, किसी ने उसके लबों को नहीं हिलते देखा। सारे उसकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे, लेकिन वो नहीं बोली। 2 दिन मज़ीद गुजर चुके थे। राहिम उस वक्त गार्डन में बैठा था और बेबसी से फरियाल के रवैये के बारे में सोच रहा था। उसने तकरीबन सारे घर वालों से बात की। सबको यही लगता था कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बचपन की दोस्त जुनैरा को मरते देखा, इसलिए उसकी मौत के सदमे ने फरियाल को परेशान कर दिया, इसीलिए वो नहीं बोलती। लेकिन राहिम को इस बात पर यकीन नहीं था। कोई और बात थी जिसकी वजह से वो बोलना छोड़ गई थी। कोई वजह थी जिसे वो मजबूर। उस रात किचन में खड़े राहिम ने उसकी आंखों में बहुत गौर से पड़ी थी, जैसे वो कहना चाह रही थी कि मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करो। वो झूले पर बैठा था,
ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کا سارا دھیان فریال کے رویے کی طرف تھا۔ وہ اور فریال کزن تھے، ان دونوں کے درمیان دوستی جیسا کوئی خاص رشتہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک الگ سی بانڈنگ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہوں۔ وہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی، وہ ہمیشہ اس کی پڑھائی میں مدد کرتا آیا تھا۔ بہت ساری یادیں تھیں جو اس وقت راہم کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو رہی تھی۔ کیا آپ لندن جا رہے ہیں؟ وہ بھی 4 سال کے لیے؟ وہ بے یقینی سے اس کے سامنے بیٹھی اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ہاں بس 4 سال کی تو بات ہے، واپس آ جاؤں گا، راہم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، لیکن فریال کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ آپ چلے جائیں گے تو مجھے ٹیوشن کون دے گا؟ وہ جیسے اس کے نہ جانے کی وجہ بتا رہی تھی۔ راہم مسکرایا، اریب بھائی سے لے لینا، یا دانیال بھی تو ہے، اس کے علاوہ ارمان بھائی بھی ہیں، تم کسی سے بھی ٹیوشن لے سکتی ہو، میں کون سا گھر میں اکیلا ہوں؟ لیکن فریال کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے راہم کو پریشان کیا۔ پلیز مت جائیں نا، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اگر آپ چلے گئے تو۔ وہ اچانک غصے میں آئے، جس طرح وہ اپنا حق جتا رہی تھی، اور راہم جو پیکنگ کر رہا تھا بس مسکرا اٹھا۔ فکر مت کرو، میں کہہ رہا ہوں نا میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ لیکن فریال اس کی کوئی بھی بات سنے بنا کمرے سے نکل گئی۔ بس اس دن کے بعد سے اس نے فریال کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ جو اپنے دھیان میں لان کی طرف چلتی چکر کاٹ رہی تھی، چہرے پر شدید پریشانی تھی، اس کا چہرہ ویران تھا، دکھ کے گہرے سائے تھے۔ وہ حویلی کے بنیادی گارڈن سے پچھلے گارڈن تک آئی اور اپنے دھیان میں زمین پر دیکھتی چل رہی۔ جب راہم کی نظر اس پر پڑی، اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں الگ تکلیف ہوئی تھی۔ آخر وہ کون سا سچ چھپا رہی تھی؟ آخر کیا ہوا تھا اس دن؟ وہ اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن اس کا دھیان راہم پر نہیں تھا۔ راہم ایک لمحے سے پہلے جھولے سے اٹھا اور اس تک پہنچا۔ فری، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ جو اپنے دھیان کچھ سوچ رہی تھی، اس کی آواز سے ایک دم بوکھلائی۔ راہم نے اس کا بوکھلانا محسوس کیا۔ اس نے لمحوں میں اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ راہم سمجھ نہیں سکا وہ آخر اپنی آواز کو حلق میں کیوں دبا رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور اب آنکھوں میں خوف لیے راہم کو دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس، یہ میں ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہوئی۔ فری، اس نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا، کیا تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہو؟ اس نے سوال پوچھ لیا تو فریال کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی، مجھے وجہ تو بتاؤ۔ وہ دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کا کہا اور پھر پلٹی۔ وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ کسی نے راہم مرتضیٰ شاہ کے سینے میں کوئی خنجر گھونپا تھا اس لمحے۔ اسے کم از کم فریال سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ وجہ کوئی تو تھی۔ وہ بے بسی سے خالی لان کو دیکھتا رہا۔ وہ اندر جا چکی تھی، شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ آج اسے کافی رات ہو گئی تھی، 2 دن پہلے ہی اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ وہ جو سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا دوسرے فلور پر ایک ملازمہ کھڑی تھی جو فریال کے کمرے میں جھانکتی کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راہم کی چھٹی حس جیسے چوکنا ہوئی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے وہ وہاں پہنچا، دیکھ سکتا تھا کہ ملازمہ کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فریال کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، جس سے نظر آ رہا تھا وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کافی گرجدار آواز میں بولا کہ ملازمہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ وہ صاحب، میں کچھ بولنے کی وہ کوشش کر رہی تھی، لیکن راہم کو دیکھ خوف سے نہیں بول پا رہی تھی۔ کیا تم؟ راہم نے اپنا غصہ قابو کیے پوچھا۔ میں بس دیکھنے آئی تھی بی بی جی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ تم اس کی آیا نہیں ہو، 20 سال کی جوان لڑکی ہے وہ، اسے کیا چاہیے ہوگا وہ خود لے سکتی ہے، تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اب یہاں سے۔ مٹھیاں بھینچ کر وہ اپنا غصہ قابو کرتے اس ملازمہ کو وہاں سے بھگا گیا، لیکن اس کا دماغ اس چیز پر اٹک گیا کہ فریال پر گھر میں نظر رکھی جا رہی تھی۔ کیا کوئی فریال پر نظر رکھوا رہا تھا؟ فریال بولتی نہیں تھی۔ کیا پریشانی تھی اسے؟ وہ کیوں پریشان تھی؟ اور اس ایک چیز نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ وہ ساری رات کمرے میں چکر کاٹتے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی فریال کو بلیک میل کر رہا تھا، کیا کوئی اسے پریشان کر رہا تھا؟ صرف یہ 2 سوال جو اس کا سکون تباہ کر گئے تھے۔ اگلا دن ہوا، وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے آیا تو اسے نیچے لاؤنج میں فریال بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی ملازمہ نہ تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے اس نے یہ کہا کہ تم یہاں ٹائپ کرو، تو فریال نے موبائل پکڑ لیا۔
आज वो कुछ पुरसकून नज़र आ रही थी। क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? उसने टाइप किया और मोबाइल संजीदगी से राहिम की तरफ बढ़ा दिया। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मसला हल करूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम किसी की धमकी या किसी के प्रेशर में होने की वजह से नहीं बोल रही। तुम्हें कोई परेशान कर रहा है और कोई तुम पर घर में भी नज़र रख रहा है। मैं सब जानता हूँ। अब ये बताओ कि मुझसे अपना मसला शेयर करना चाहती हो या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इस तकलीफ़ से बाहर निकालना चाहता हूँ। वो काफ़ी संजीदा था। फरियाल की आंखें लम्हों में भीगी थी। मैं सिर्फ एक शर्त पर आपको सारी बात बताऊंगी। उसने मोबाइल राहिम की तरफ बढ़ाया तो राहिम ने पढ़ा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वो फ़ौरन बोल उठा। वो साथ साथ देख रहा था कि मुलाजमा दूर खड़ी उन पर नज़र रख रही थी, लेकिन मुलाजमा ये न जान सकी कि राहिम क्या बात कर रहा है, क्योंकि वो दोनों टाइपिंग कर रहे थे। पहले आपको एक यतीम को खाना बना कर देना होगा जहाँ पर ये यतीम बच्चे रहेंगे। उसके बाद मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी। उसने मोबाइल राहिम की तरफ बढ़ा दिया। राहिम समझ न सका वो क्या चाह रही है, लेकिन उसे उसकी शर्त माननी थी। ठीक है, तुम्हारी शर्त पर आज से ही अमल शुरू हो जाएगा। वो पुरसकून था। वो फरियाल को उसकी मुसीबत से निकालने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो ठीक है, मैं आपकी इस शर्त के पूरे होने के बाद सारी बात बता दूंगी आपको। वो उठ खड़ी हुई। मोबाइल राहिम का टेबल पर रख कर वो जा चुकी थी। राहिम ने बेबसी से उसकी पुश्त को देखा और एक नज़र मुलाजमा को, जब अपना ध्यान सफाई की तरफ लगा चुकी थी। वो सोच चुका था कि अब उसे क्या करना है। फरियाल अपने ही घर में महफूज नहीं थी। कोई उस पर नज़र रखे हुए था। उसके चेहरे पर हर वक्त छाई घबराहट और खौफ बता चुका था कि राहिम राहिम इतना भी बच्चा नहीं था कि वो समझ ना सके कि एक लड़की क्यों खौफज़दा रहती है। उसने एक फ़ैसला किया और अब उसे इस फैसले पर अमल करना था। आज जुमा का दिन था। सारे घर वाले जुमा के दिन नमाज अदा करके वापस आए। उस वक्त वो इब्राहिम शाह के पास बैठा था। ताया जान, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सारे मर्द इकट्ठे बैठे थे। इनफैक्ट घर की औरतें भी यही थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? इब्राहिम साहब ने उसे बोलने का इशारा किया। मैं फरियाल से निकाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मुकम्मल ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे उसे अपने निकाह में लेना है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, मैं उसे मुकम्मल ठीक कर दूँगा। फरियाल को मुकम्मल ठीक करना मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए मुझे उसे अपनी महरम बनाना है। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे समझना चाहता हूँ। उसके लिए उसका मेरे साथ कोई रिश्ता होना ज़रूरी है, और मियाँ बीवी से ज़्यादा बेहतर रिश्ता दुनिया में कोई नहीं। आपको अभी और इसी वक्त निकाह करना है। किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि फरियाल की जान को खतरा है। वो बहुत संजीदगी से बात कर रहा था और सारे हैरान हो रहे थे। उस वक्त कोई मुलाजमा आसपास नहीं थी। उसने सारे मुलाजमीन को कामों से घर से बाहर निकाल दिया था। ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इब्राहिम साहब खुद चाहते थे उनकी बेटी ठीक हो जाए। और राहिम ने पुरसकून सांस ली। उसने शिजा बेगम को मुखातिब किया। फरियाल को मनाना खला आपका काम है। वो जानता था उसकी माँ ये काम बेहतर तरीके से कर सकेगी। उसकी माँ ने सर इस बात में हिलाया। वो कमरे में दाखिल हुई तो फरियाल खिड़की की तरफ रुख मोड़े न जाने क्या सोच रही थी। उसकी माँ उसके सामने आ बैठी। फरियाल, मुझसे आज एक वादा करो। मैं तुम्हें जो कहूँगी वो तुम मानोगी। उसकी माँ बहुत संजीदा थी। फरियाल ने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया। अभी 2 घंटे बाद तुम्हारा और राहिम का निकाह है। तुम्हें यह निकाह हर हाल में करना है। और किसी ने फरियाल का सांस रोका था। उस वक्त उसने बेयकीनी से माँ को देखा। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो नफ़ी में सर हिलाती अपनी माँ को मना कर रही थी कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन उसकी माँ ने उसका हाथ अपने सर पर रखा। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने इनकार किया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी वरना। और फरियाल का सारा वजूद जैसे साकित रह गया। वो बुरी तरह से बेहद बेबस हुई थी। अपनी माँ की बात मानने के चक्कर में वो राहिम की जान खतरे में डाल नहीं सकती थी। अगर निकाह कर लेती तो राहिम की जान को भी खतरा था। अगर ना करती तो माँ की जान। वो बुरी तरह फंस गए। उस शख्स ने साफ कहा था अगर उसके करीब कोई भी आया तो उसे जान से मार देगा, और राहिम उसे बहुत अजीज था। वो राहिम की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बेबस कर दिया। वो बेबसी से अपने आंसू पोंछती, नफ़ी में सर हिलाती पीछे। ठीक है, अपनी माँ की मैयत देखने की तैयारी कर लो। उसकी माँ भी गुस्से से कहती, उठ खड़ी हूँ। इससे पहले कि वो जाती, फरियाल ने एक झटके से उनका हाथ पकड़ा और शिजा बेगम के बढ़ते कदम थम गए। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। तो फिर निकाह के लिए मान जाओ। उसकी माँ के लहजे में आज कोई लचक ना थी। कौन सी माँ ऐसी होगी जो नहीं चाहती होगी कि उसकी बेटी महफूज है, उसकी बेटी ठीक रहे। उसकी बेटी ठीक नहीं थी। वो माँ
जानती थी ये बात तो मंजूर है, उसकी माँ ने पूछा तो वो इस बात में सर हिला गई, अपने आंसू साफ करने लगी। वो राहिम को एक दलदल में घसीट रही थी और राहिम की जान के साथ खेल रही थी, मगर वो मजबूर थी। अगले 1 घंटे बाद वो सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहने लाउंज में झूले पर बैठी थी। उसे डर था कहीं वो शख्स यहाँ ना आ जाए और राहिम को कोई नुकसान न पहुँचा दे, लेकिन राहिम ने उसकी बात की पूरी तसल्ली की थी कि इस निकाह की खबर इस शाहविला से बाहर ना जाए। वो उस वक्त पूरी तैयारी के साथ बैठा था। उन दोनों का निकाह हो गया। मैं रुखसती अभी चाहता हूँ क्योंकि यही फरियाल के लिए बेहतर है। उसने इब्राहिम शाह को मुखातिब किया। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। दानियाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं चाहता हूँ मेरी बहन पहले की तरह हंसे खेले और बोले, और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसे उम्मीद था राहिम उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकाल लाएगा, लेकिन कौन जानता था कि ये ट्रॉमा नहीं, ये तो खौफ में लिपटी एक लड़की है। फरियाल का सारा वजूद कँप-कँपा रहा था। उसे सिर्फ राहिम की जान की फिक्र थी। वो बेयकीनी से सारे घर वालों को देख रही थी जो बहुत पुरसकून बैठे थे। अगर वो यहाँ आ गया और उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो राहिम की बीवी बन चुकी थी। सारे आहिस्ता आहिस्ता उठते अपने अपने कामों में लग गए। फरियाल बस डरती घबराती आसपास देख रही थी कि कहीं उस मुलाजमा ने तो नहीं देखा, लेकिन राहिम पहले उस मुलाजमा का बंदोबस्त किए यहाँ से भेज चुका था। राहिम उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। उसने आहिस्ता से फरियाल का हाथ पकड़ा और फरियाल ने बेयकीनी से अपना हाथ उसके हाथ में देखा। कमरे में चलते हैं, वहाँ जाकर सुकून से बात करेंगे। उससे पहले खाना खा लो क्योंकि मगरिब हो चुकी है। इसलिए सारे खाने की टेबल पर आकर बैठे। फरियाल का दिल चाहा वो धाड़े मार मार कर रोए। आज उसकी वजह से राहिम की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि राहिम किस कदर तैयारी के साथ बैठा है। खाना खाने के बाद उसने फरियाल का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए कमरे की जानिब चल पड़ा। उसका हर एक बढ़ता कदम फरियाल को राहिम की मौत के करीब जाता महसूस हो रहा था। वो तड़प रही थी, वो नफ़ी में सर हिला रही थी। वो उसे मना करना चाहती थी कि मत करो ऐसा, तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन वो नहीं बोल सकती थी। उसे साथ लिए वो तीसरे फ्लोर में अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर गया। जैसे ही लॉक की आवाज़ आई, फरियाल का दिल उछलकर हलक में आया था। उसने सारी खिड़कियां पर्दे बराबर किए, कमरे की हर चीज़ की तलाशी ले चुका था कि कहीं कोई कैमरा वगैरह ना छुपाया गया। फरियाल उस वक्त सफ़ेद और गोल्डन कलर के इम्तजाज की फ़्रॉक में थी। उसने फरियाल का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाया। इस कमरे में तुम मुकम्मल महफूज हो। अब तुम मेरी बीवी हो। कोई तुम्हें एक हर्फ कहना तो दूर, तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे ना तो खुदा की कसम आंखें फोड़ने की ताकत रखता। अब बताओ तुम क्यों नहीं बोलती थी? मुझे हर चीज़ जाननी है। अपने लब खोलो। कब तक छुप छुप कर खौफ से जीती रहोगी फरियाल? उसने ज़िंदगी में पहली बार फरियाल का पूरा नाम पुकारा और फरियाल की आंखों से अश्क निकलकर उसके गालों पर फिसलने लगे। वो नफ़ी में सर हिला रही थी, लेकिन आज राहिम ने सोच रखा था कि सारी सच्चाई जान कर ही रहेगा। मैं जानता हूँ सिर्फ सुनहरा की मौत ने तुम्हें खामोश नहीं करवाया, उसके पीछे कोई वजह है। मुझे वो वजह जाननी है, और उस वजह को हल ना किया तो मेरा नाम भी राहिम इब्राहिम शाह नहीं। तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी हर तकलीफ़ को दूर कर दूंगा। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझ पर यकीन नहीं है क्या फरियाल? एक बार फिर उसने फरियाल का उसका फरियाल कहना फरियाल के दिल के सारे तार छिड़ रहा था। मेरा नाम लो, भूलो फरियाल। वो उसे बोलने को उकसा रहा था। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ ना तुम्हारी ढाल। आखिर क्यों नहीं बोलती तुम? वो बस रो रही थी। ठीक है, नहीं बोलना तो मत बोलो, खुलकर रो। तुम्हारी रोने की आवाज़ मेरे कानों तक आनी चाहिए, तुम्हारी सिसकियाँ इस कमरे में गूंजनी चाहिए। वो जानता था फरियाल अपनी सिसकियाँ भी दबा लेती है, लेकिन फरियाल ने दोनों हाथ बहुत मजबूती से अपने होठों पर रखे हुए थे। राहिम ने 10 मिनट तक उसकी आवाज़ का इंतज़ार किया। रो क्यों नहीं रही? समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी आवाज़ चाहिए। वो वहशतज़दा लहजे में चीखा और फरियाल लम्हों में खौफज़दा हुई थी। पहली बार राहिम से उसे खौफ महसूस हुआ था। वो रोने लगी थी, उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। वो खुलकर रोई। राहिम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे खुलकर रोने दिया। उसकी हिचकियाँ और सिसकियाँ कमरे के दरो दीवार से टकराती बस राहिम के कानों में पड़ रही थी। मेरा नाम लो। जब वो रो रो कर थक गई तो राहिम ने जैसे हुक्म सुना, वो नफ़ी में सर हिला गई। मैंने कहा मेरा नाम लो फरियाल राहिम शाह। जिंदगी में पहली बार वो फरियाल राहिम शाह के नाम से पुकारी गई थी कि यही उसका असल नाम था और यही उसकी पहचान था। राहिम के लहजे में बहुत सख्ती थी। वो जान चुका था कि फरियाल नरमी से नहीं बताएगी। बोलो,
दोनों बाजू सख्ती से पकड़े वो उसे झिझोर रहा था। राहिम उसके लबों से टूटे फूटे हर्फ अदा हुए और उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनते राहिम की आंखों में नमी चमकी। पूरे 4 साल बाद वो एक लफ्ज़ मुंह से निकाल पाई थी। वो ज़मीन से उठा और उसके साथ बैठा, उसे खुद से लगा गया। इस अमल से वो साकित रह गई, लेकिन फिर उसकी तकलीफ हैरत पर गालिब आई। उसके सीने से लिपटी मज़ीद ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मुझे बताओ क्या हुआ था, सच बताओ, मुझ पर भरोसा रखो। उसका सर थपथपाते राहिम ने उसे एक बार फिर नरमी से हैंडल करना चाहा। वो आपको मार देगा, मुझे मजबूर ना करें। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में, कोई मुझे नहीं मार सकता जब तक खुदा ना चाहे। अब बताओ। वो पुरसकून था। राहिम को अगर मौत से डर लगता तो कब का मर चुका होता। उसके एक एक लफ्ज़ में मजबूती थी। फरियाल जान गई थी कि आज राहिम सारा सच जाने बिना वाकई नहीं बख्शेगा उसे। 4 सालों की खामोशी के बाद बिलाखिर वो बोलना शुरू हुई। उन दोनों के मैट्रिक का रिजल्ट आया था। दानियाल भाई एक पुलिस ऑफिसर थे। वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे जब फरियाल ने मुखातिब किया, भाई मुझे जुनैरा के घर छोड़ देंगे। वो भी उसके पीछे ही गार्डन तक आई। ठीक है, आ जाओ। उसे साथ लिए वो गाड़ी में बैठा और कुछ देर बाद उन दोनों की गाड़ी जुनैरा के घर के बाहर रुकी। वो और जुनैरा बचपन की दोस्त थी। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद लेने आ जाऊँगा। फरियाल ने नफ़ी में सर हिलाया। ले, 2 घंटे में क्या होगा, मैंने इतनी सारी बातें करनी होती हैं। शाम को आइएगा ना। वो नाक मुंह फुलाकर बोली कि दानियाल कहका लगा उठा। अच्छा ठीक है मेरी बहन। वो भी पुरसकून होती गाड़ी से निकल गई। उसके घर के अंदर दाखिल होने के बाद दानियाल ने गाड़ी दोबारा सड़क की तरफ बढ़ाई थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई उसने देखा कि लाउंज में जुनैरा के वालिदैन बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। उसकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो दोनों सीधे हुए। उन्होंने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। फरियाल ने देखा वो कुछ परेशान थे। क्या हुआ, आप ठीक है ना, वो उसके बाप से पूछ रही थी। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम यहाँ? हाँ, मैं जुनैरा से मिलने आई थी। उसके दोनों वालिदैन के चेहरे पर खौफ के साए लहराए थे। बेटा क्या ज़रूरत थी इतनी गर्मी में आने की, उसकी वालिदा ने कहा तो वो हैरान हुई। आपको तो पता है जुनैरा से काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, उसकी याद आ रही थी इसलिए। वैसे वो है कहाँ? वो आसपास देख रही थी, वो अपने कमरे में, उसकी माँ ने बताया। वो ठीक है, ठीक है, मैं उससे मिल लेती हूँ। वो सरस बात में हिलाती सोफे से उठी और उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि जुनैरा बहुत परेशान बैठी थी। जुनी क्या हुआ? वो उस तक पहुंची। फरियाल, उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। किसी ने फरियाल के सीने में खंजर घोंपा। जुनैरा क्या हुआ? वो उसे जुनैरा बहुत कम कहती थी, जूनी बोलती थी। वो भागती उस तक पहुंची। वो बेड पर बैठी फिर रोने लगी। काफ़ी मुश्किलों से फरियाल ने ये जानने की कोशिश की कि वो क्यों रो रही है। एक गुंडा है शेरा, शेरा नाम का, वो बाबा को तंग करता है। बाबा की ज़मीन है जिसकी मालियत 50 लाख है। वो बाबा को पैसे देकर ज़मीन खरीदना चाहता है क्योंकि उसे वहाँ कोई काम करना है, लेकिन बाबा अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते। उनकी ख़ानदानी ज़मीन है। इस बात पर वो बाबा से काफ़ी झगड़ता रहता है। 2-3 बार हमारे घर आ चुका है। ये भी कहता है कि अगर बाबा ने वो ज़मीन उसे ना दी तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। बाबा बहुत परेशान है। बाबा बहुत परेशान है। फरियाल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कभी भी यहाँ मुंह उठा के आ जाता है। ये सब बताते जुनैरा हिचकियों से रो रही थी। मैं क्या करूँ फरियाल, मैं बहुत परेशान हूँ। वो रो रही थी। फरियाल ने उसे खुद के साथ लगाकर हौसला दिया। फिक्र मत करो, हम दानियाल भाई से बात करेंगे। वो पुलिस में, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इससे पहले कि वो कोई बात करती, बाहर से चीखो पुकार की आवाज़ें आईं। वो दोनों खौफज़दा होती कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में 2 आदमियों ने फरियाल के वालिद को पकड़ रखा था। उसकी माँ एक साइड पर कुर्सी से बंधी थी। आधे घंटे के अंदर क्या से क्या हो गया था। अभी तो फरियाल अंदर गई थी, उसके बाप के सर पर गन रखी हुई थी। मैंने तुम्हें मौका दिया था ना कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरे नाम कर देना ज़मीन, लेकिन लगता है तुम्हें समझ नहीं आती। वो कोई हट्टा कट्टा 30 साला मर्द था जो उसके बाप के सर पर गन रख के चीख रहा था। फरियाल के साथ सुनहरा के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। उस शख्स ने बिना सोचे समझे एक गोली सीधी सुनहरा के बाप के सर में दे मारी। दोनों की चीखें निकल गई। उनकी चीखों से वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। उसकी माँ कुर्सी पर निढाल बंधी बैठी थी, नफ़ी में सर हिला रही थी कि अंदर जाओ बाबा, मामा। वो चिल्लाई और वो शख्स जिसका नाम शेरा था एक ही झटके में सुनहरा तक पहुंचा। फरियाल ने उसका बाजू पकड़ना चाहा लेकिन वो सुनहरा को अपनी तरफ खींच चुका था।
तेरे बाप को कहा था ना ज़मीन दे दे, लेकिन लगता है उसे अपनी इज्जत अजीज़ ने। उसने जुनैरा का मुंह दबोचा और फरियाल चीख पड़ी, प्लीज़ इसे छोड़ दो। वो तड़पी थी, आखिर उसकी दोस्त थी। उनमें से एक आदमी ने एक गोली फरियाल के बाजू के आर पार की। इससे पहले कि वो अगली गोली फरियाल को मारता, शेरा ने उस आदमी के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। पागल इंसान, कितनी बार कहा है कि लड़कियों को नहीं मारा करो। वो करजा था और फरियाल के जिस्म में खौफ की लहर सिरायत कर गई। उसका बाजू खून से भर गया, सारे जिस्म में तकलीफ की लहर उठी। उसके बाजू से गोली गुजर गई थी। जुनैरा की माँ को भी एक गोली मारी गई, लेकिन उन लोगों ने गन पर साइलेंसर लगा रखे थे, इसलिए जुनैरा और फरियाल के कानों में कमरे तक आवाज़ नहीं गई। प्लीज़ मेरी दोस्त को छोड़ दो। वो तड़पी तो शेरा ने एक झटके से पहले फरियाल का मुंह दबोचा। मैंने ज़िंदगी में बहुत हुस्न देखा, लेकिन तुमसे ज़्यादा हसीन लड़की कहीं नहीं देखी। फिक्र मत करो, तुम्हारा नंबर भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। वो उसका मुंह दबोचे हुर्राया और फरियाल के दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसने एक झटके से पहले जुनैरा को ज़मीं पोंछ किया और अगले ही लम्हे वो उस पर हावी हो चुका था। जुनैरा तड़पी। फरियाल ने इतना भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा था। वो सफाक इंसान उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त के वजूद को बेमोल कर रहा था। फरियाल की आंखों से आंसू बहते ज़मीन पर गिर रहे थे। वो अपने बाजू पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठी थी। जुनैरा की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो हरकत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके ज़मीन कदम जकड़ चुकी थी। उसने एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन दोनों आदमियों ने उसे कंधों से पकड़े जुनैरा से पीछे कर दिया। जुनैरा का सारा वजूद ज़ख्मी हो चुका था। वो तड़पी थी, सिसकी थी। उसकी सिसकियाँ फरियाल ने ना सिर्फ सुनी, बल्कि अपनी आंखों से भी देखी। बेहद सफाकियत के साथ जुनैरा को तकलीफ़ पहुंचाई गई थी। सफाकियत की हद थी आखिरी वो, कि एक दोस्त के सामने उसकी दोस्त को बेआबरू कर दिया गया। एक मरती माँ के सामने उसकी बेटी को तबाह कर दिया गया। वो माँ वहीं कहीं दम तोड़ गई। जुनैरा का बेजान जिस्म तड़प रहा था। फरियाल ने बहुत मुश्किलों से खुद को हरकत देके उस तक पहुंचाया। जुनी आंखें खोलो ना। वो तड़प कर उसे पुकार रही थी। फरी वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कह ना पाई। उसका जिस्म वहीं का वहीं साकित रह गया। फरियाल तड़प उठी थी। उसके बेजान जिस्म में जैसे किसी ने आग लगा दी। जुनी प्लीज़ आंखें खोलो, खुदा के वास्ते आंखें खोलो। फरियाल उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जुनैरा मर चुकी थी। वो इतनी वहशत कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। महज एक 16 साल की लड़की थी। मैं तुम्हारा बदला लूँगी। फरियाल जख्मी शेरनी की मानित घुर्राई। इससे पहले कि वो अगला लफ्ज़ अदा करती, एक लम्हे से पहले शेरा ने उसका मुंह दबोचा। अच्छा, तुम इसका बदला लोगी? वो उसके चेहरे पर इतनी वहशत से घुराया कि फरियाल खौफजदा होती अंदर तक काम गई। एक बात याद रखना फरियाल इब्राहिम शाह, अगर तुम्हारी ये ज़ुबान खुली तो उसी दिन तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ पूरे शाह विला का नाम और निशान मिटा दूंगा। उसके कान के पास झुकते वो घुर्राया और फरियाल का सारा वजूद बर्फ हो गया। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो तुम्हारी गलत फहमियाँ। एक माह पहले, अगर तुम्हें याद हो, तो तुम इस घर से निकल रही थी जब मैंने तुम्हें देखा, और उस नज़र में ही तुम मुझे अच्छी लगी। उस दिन तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। तुम्हारा एक भाई बिजनेसमैन है, दूसरा वकील और तीसरा पुलिस वाला, चौथा जो लंदन गया। इसके अलावा तुम्हारी एक कज़न भी है जो यूनिवर्सिटी पढ़ती है। गालिबन तुम्हारे उस पुलिस वाले भाई की मनकूहा है। अगर उन सब की जान अजीज़ है ना, तो याद रखना, तुमने मुंह खोला उसी दिन इन सबको मार डालूंगा। सबसे पहले उसे जो दारे खैर में आबाद है। वो राहिम की बात कर रहा था और किसी ने फरियाल का वजूद जंजीर कर दिया। आज के बाद तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। ये समझो तुम गूंगी हो। अगर तुमने एक भी लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा किया तो सारे घर वालों की जान अपनी आंखों के सामने जाती देखोगी। अभी तो सिर्फ अपनी दोस्त और उसके माँ बाप को मरते देखा है ना, समझ रही हो ना? फरियाल को उसके लम से घुटन हो रही थी। वो उसका मुंह छोड़ते पीछे हुआ। फरियाल निढाल सी ज़मीन पर गिरी। अब वो ज़मीन पर अपनी गन उठा रहा था। तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो सब मरेंगे। और दूसरी बात, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर किसी ने तुम्हें हाथ लगाने की भी कोशिश की तो जान से मार डालूंगा। वो जाते जाते धमकी देने से बाज नहीं आया था, और फरियाल सर से पैर तक पत्थर की हुई थी। वो सारे जा चुके थे।
सफाकियत की हद थी कि एक लड़की को 5-6 मर्दों के दरमियान इतनी बेरहमी से मार दिया गया। उनके जाने के बाद फरियाल ने अपने बेजान वजूद को हरकत देने की कोशिश की। वो जुनैरा तक पहुंची। जुनी उसने जुनैरा का नीम जख्मी चेहरा थपथपाया, लेकिन वो साकित हो चुकी थी। कहीं दूर से फरियाल के कानों में जुनैरा की आवाज़ गूंजी, अगर मेरा बस चले तो मैं एक यतीम खाना बनवाऊँ। फरियाल, जहाँ सारे यतीम बच्चे रहें, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और फरियाल फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपनी ख्वाहिश को अपने साथ लिए इस दुनिया से चल बसी थी। वो पत्थर की जंजीर बनी वहीं बैठी रही। पूरे 2 घंटों बाद अरमान के साथ दानियाल घर दाखिल हुआ। वो कितनी ही देर से फरियाल का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने तो जुनैरा के घर पर काफ़ी बार कॉल भी की, लेकिन किसी ने नंबर नहीं उठा। लाउंज की हालत देख वो हैरान रह गए। एक तरफ जुनैरा के बाप की लाश पड़ी थी, वो लोग उसके बाप को मारकर उसके अंगूठे का निशान लेकर जा चुके थे। एक तरफ उसकी माँ कुर्सी पर बंधी मर चुकी थी, और ज़मीन पर जुनैरा की हालत देख अरमान और दानियाल ने एक साथ अपने चेहरे पीछे मोड़ लिए। वो नीम बरहना हालत में थी। किसी ने उन दोनों मर्दों के सीने में खंजर घोंपा था। वो दोनों खुद पर काबू पाते फरियाल की तरफ मुतवज्जो हुए। दानियाल फौरन उस तक पहुंचा। फरियाल मेरी जान। उसने फरियाल का गाल थपथपाया, लेकिन फरियाल की निगाहें साकित थीं। अरमान ने जल्दी से आसपास कोई चादर ढूंढी, सोफे तक पहुंचकर चादर उठाई और जुनैरा के नीम बरहना वजूद पर डाल दी। एक लम्हे से पहले बेहोश हो गई थी वो, और अरमान उसे पुकारता रह गया। फिर वो दोनों फौरन फरियाल को ले हॉस्पिटल पहुंचे। पूरे 2 दिन फरियाल हॉस्पिटल में ही रही। जुनैरा और उसके वालिदैन की तदफीन की जा चुकी थी। अरमान और दानियाल ने जो हालत देखी, उसके बाद दोनों अहद कर चुके थे कि जुनैरा के साथ हुए उस जुल्म का बदला ज़रूर लेंगे। फरियाल पूरे 2 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई थी। सब ने उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन वो नहीं बोली। सारे घर वालों ने आजमा लिया, लेकिन वो नहीं बोली। एक बार उसने बोलने की कोशिश की। उसे लगा कि घर के अंदर किसी को पता नहीं चलेगा अगर वो अपने घर वालों को बता देगी, लेकिन अचानक ही उसके सामने एक मुलाजमा आई। शेरा की नज़र तुम पर हर वक्त है फरियाल शाह। मुलाजमा ने सिर्फ एक लाइन कही, और उसके अल्फाज फरियाल पर बिजली बनकर गिरे थे। वो उस पर नज़र रख रहा था। उसी रात जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसके कमरे में मौजूद था वो। मैंने कहा था ना तुम्हें अपना मुंह खोलने की इजाज़त नहीं, सोचना भी मत मुंह खोलने के बारे में अपना। वो डरती, खौफजदा होती, घबराई थी। और राहिम को गुस्सा आया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने शोहर को एक गैर मर्द से डरा रही हो। शोहर हूँ मैं तुम्हारा, आई समझ। वो उसे बहुत कुछ बावर करवा रहा था, लेकिन फरियाल कहाँ उसकी सुन रही थी। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मैं आपसे। इससे पहले कि वो अगला लफ्ज़ अदा करती, वो जैसे होश में आई और एकदम खामोश हुई। राहिम ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा, जो अपने आंसू पोंछती, अपनी घबराहट पर काबू पाती उससे दूर। क्या मुझसे? वो जानना चाहता था कि वो क्या कहने वाली थी। फरियाल, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, बताओ मुझे क्या मुझसे। फरियाल का बाजू पकड़े उसे अपनी तरफ किए वो दोबारा गुस्से से चीखा, क्योंकि मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। वो भी उसी ताकत से चिल्लाई, और राहिम के चेहरे पर पहले हैरत और फिर खुशगवार मुस्कुराहट बिखरी। फरियाल सूरत से अपना चेहरा मोड़े अब फूट फूट कर रो पड़ी। वो कभी भी उस शख्स के सामने इजहार नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करती, वो अपनी जान खतरे में डाल चुका था। राहिम ने दोबारा उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते उसे खुद से लगाया। अगर मोहब्बत करने का जज्बा रखती हो तो उसका इजहार भी डंके की चोट पर करना सीखो, जैसे मैं करता हूँ। हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है फरियाल शाह, इतनी मोहब्बत कि मैं उस शख्स की जान भी ले सकता हूँ जिसने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई, और अब मैं ऐसा ही करूँगा। वो खुद से अहद करता एक लम्हे से पहले बेड से उठा। चलो उठो, संजीदगी से कहते उसने फरियाल का बाजू पकड़ा। आप क्या करने वाले हैं? वो परेशान हुई। बस देखती जाओ अब मैं क्या करता हूँ। फरियाल हरगिज़ नहीं समझ सकी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो उसका हाथ पकड़े उसके साथ अपने कमरे से बाहर निकला और फरियाल के कमरे के बाहर पहुंचकर रुक गया। अपने कमरे में जाओ, लिबास चेंज कर लो, बस जो कुछ होगा मुझ पर छोड़ दो। वो पहेलियों में बातें कर रहा था। फरियाल कुछ समझ नहीं सकी और बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गए। उसके जाने के बाद उसे अब अपने प्लान पर अमल करना था। उसने आधी रात को सारे घर वालों को जगाया। उस वक्त सारे बुरहान साहब के कमरे में मौजूद थे। वो सारे ख़ानदान को सारी बात बता चुका था। हर शख्स का खून खोल रहा था। मेरे पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है जिससे हम शेरा से हर किस्म का बदला ले सकते हैं। खामोश कमरे में राहिम की आवाज़ गूंजी। कैसा आइडिया? दानियाल ने बेचैनी से पूछा। उसके बाद राहिम ने उन सबको अपना आइडिया शेयर किया तो सब काफ़ी हैरान परेशान हुए। शाहविला में अगला दिन उतर चुका था। वो अपने कमरे में बैठी स्टडी टेबल पर
कोई नॉवल पढ़ रही थी जब वही मुलाजमा उसके कमरे में दाखिल हुई और सीधी फरियाल तक पहुंची। ये जो तुम राहिम से राब्ते बढ़ाने की कोशिश कर रही हो ना, उसे यहीं रोक दो, वरना याद रखना राहिम की मौत की वजह तुम बनोगी। फरियाल इब्राहिम शाह। वो मुलाजमा जख्मी शेरनी की मानित घूर फरियाल के जहन में राहिम की बातें आ रही थीं। उसने आंखें बंद किए राहिम के कहे जुमले दोहराने का सोचा, फिर आंखें खोली और पूरी ताकत से अपने अंदर हिम्मत पैदा की। उसने अपनी आंखें खोली और पूरी ताकत से अपने अंदर हिम्मत जमा की। अपने उस शेरा को जाकर बता दो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं नहीं डरती उसे। हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। मुलाजमा की आंखें फटने के करीब आ गई। इन 4 सालों में पहली बार मुलाजमा के सामने फरियाल ने अपनी जुबान खोली थी। फिर वो दोबारा नॉवल पढ़ने में गुम हो गई। मुलाजमा फटी फटी निगाहों से फरियाल को देख रही थी। फरियाल सर से पैर तक बदल गई थी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब शेरा ही तुम्हें आकर सेट करेगा। वो उंगली उठाते डराती हुई उसे कमरे से बाहर निकल आए। उसके जाने के बाद फरियाल खौफ से कपकपा उठी। जानती थी आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। रात के साए शाहविला पर फैलाए हुए थे। वो अपने बेड पर लेटी बेचैन थी और करवटें बदल रही थी जब बालकनी का दरवाज़ा एक दहाड़ के साथ खुला था और वो अपना बैलेंस पर करार न रख पाई और फरियाल से 2 कदम पीछे होता वो ज़मीन पर गिरा। उसने बेयकीनी से चेहरा उठाए देखा तो उसके सामने राहिम खड़ा था। फरियाल डरी सहमी बेड से चिपक गई। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, वो पूरी ताकत से चिल्लाया और शेरा ने बेहद बेयकीनी से फरियाल को देखा। ओह, तो तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा था ना कि धोखे की सज़ा सिर्फ मौत होगी। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहते उसने अपनी गन निकाली और रुख सीधा राहिम की तरफ किया। फरियाल ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी चीखों का गला घोंटा। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। राहिम पुरसकून लहजे में कहता कदम कदम चलता उस तक पहुंचा। शेरा के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि वो गोली चलाता किसी ने उसके हाथ पर पूरी शिद्दत से लात मारी। उसने पलट कर देखा तो वो अरमान था। राहिम के चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट आई। उसने झुकते हुए शेरा की गन उठा ली। तो बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की बेटियों की इज्जत के साथ खेलने का? अरमान ने इतना कहते पूरी ताकत से एक मुक्का शेरा के मुंह पे दे मारा। शेरा दोबारा जमीन पोस हुआ। इससे पहले वो कुछ सोचता समझता कमरे की लाइट जली और दानियाल सामने खड़ा था। वो तीनों पहले से उसके कमरे में छुपे थे। शेरा हैरान हो रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? दानियाल उसके मुंह पर पै दर पै मुक्के मार रहा था। जानते थे दुश्मन को पकड़ने के लिए उसे अपने बिल से बाहर लाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया। जानबूझकर मुलाजमा को गुस्सा दिलाया कि मुलाजमा शेरा को 2-4 बातें एक्स्ट्रा लगा कर बताए और शेरा उसे डराने के लिए आए। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। राहिम ने दानियाल को बहुत मुश्किल से पीछे किया। तुम्हारा बदला बाद में, पहले मेरा बदला होगा। इसने मेरी फरी को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हें क्या लगा तुम हर दूसरी सुनहरा की ज़िंदगी के साथ खेलोगे और ये भाई देखते रह जाएंगे? अरमान ने एक बार फिर मुक्का उसके मुंह पे दे मारा। फरियाल खौफ से सुकड़ी सिमटी बेड के साथ चिमटी जा रही थी। क्या ख्याल है, पुलिस के हवाले करें या आपस में निपटा लें? राहिम ने मुस्कुराहट के साथ अरमान से कहा तो दानियाल ने दोनों को घूर कर रह गया। शेरा का सारा चेहरा नीलो नील हो चुका था। वो जख्मी हो रहा था बुरी तरह। अकेला आया था इस बार। वो 3 थे और शेरा बहुत बुरी तरह उनके शिकंजे में फंसा था। मेरे ख्याल से पुलिस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। राहिम की बात पर अरमान ने नफ़ी में सर हिला। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, पुलिस वाले तो पहले इन्वॉल्व हैं। उसने कनखियों से दानियाल की जानिब देखा। ओहो, ये पुलिस नहीं है, इस वक्त ये सिर्फ भाई है। तो क्या ख्याल है पहली गोली कौन मारेगा? राहिम ने गन उन दोनों के सामने अरमान के हाथ में दे दी। भाई मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, ये गोलियों से खेलने का मुझे कोई शौक नहीं, तुम दोनों जानो। इतना कहते वो एक साइड पर खड़ा हुआ तो दानियाल और राहिम दोनों की नज़रें टकराई। पहला हक मेरा है, वो बहन है मेरी। दानियाल ने राहिम को घूरा। हरगिज़ नहीं, पहला हक मेरा है, बीवी है वो मेरी। दोनों इसी बात पर झगड़ रहे थे और फरियाल बेबसी से अपना सर पकड़कर बैठी थी। ठीक है, तुम सिर्फ एक मारोगे, बाकी 5 मैं। राहिम ने जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा तो दानियाल की आंखें चमकी। आगे बढ़ा और शेरा की कान पकड़े एक गोली शेरा के फेफड़ों में उतार दी। शेरा की चीखें कमरे में गूंजी। फिक्र मत करो, तुम किसी के लिए ख़ास नहीं हो, कोई तुम्हें ढूंढता यहाँ पहुँच जाए।
कोई तुम्हें यहाँ ढूंढता हुआ नहीं पहुँचेगा, तुम्हारी लाश ऐसी जगह दफनाएंगे कि किसी को पता तक नहीं चलेगा। दानियाल ने कहते राहिम के हाथ में गन थमाई। फरियाल नफ़ी में सर हिलाती बेड से उठी। हरगिज़ नहीं, आप किसी का खून नहीं करेंगे। वो इतनी घबराई हुई थी, राहिम समझ सकता था। वो राहिम के हाथ को पकड़ चुकी थी। आप खूनी नहीं बनेंगे। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसका शोहर कातिल हो। उसने गन एक झटके से पकड़े राहिम के हाथों से दूर की। आपको मेरी कसम, आप कत्ल नहीं करेंगे। दानियाल ने वो गन ज़मीन से गिरी उठाई। बहुत बुरी बात है फरियाल, जब दो मर्द आपस में बात कर रहे हो तो लड़कियां नहीं बोलती। दानियाल के लहजे में बहुत ज़ब्त था। फरियाल को पहली बार अपने भाई से डर लगा। वो घबराती राहिम के पीछे छुपी तो राहिम ने दानियाल को आंखें दिखाई। ओए साले, मेरी बीवी से तमीज़ से बात कर वरना अगली गोली तेरे भेजे में डालूंगा। आया बड़ा मर्द, अगर इतना ही मर्द था तो 4 सालों से अपनी बहन की तकलीफ़ क्यों ना जान सका। राहिम के लहजे में मजाक के बाद सख्ती तो आई। वो दोनों इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मजाक मस्ती कर रहे थे। ठीक है मेरी जान, तुम कहती हो तो मैं अपने हाथ इस गंदे शख्स के खून से नहीं रंगता हूँ, ठीक है। उसने मोहब्बत से कहते फरियाल को बेड पर बिठाया और फिर साइड टेबल तक आया। पानी का ग्लास उसके हाथ में पकड़ाया। तुम पानी पियो और ये सारा तमाशा देखो। फरियाल ने अपना कपकपाता हाथ बढ़ाते पानी का ग्लास पकड़ा। वो दोबारा दानियाल की तरफ पलटा। वैसे मैंने सुना है अगर मुजरिम भागने की कोशिश करे तो उसका इनकाउंटर हो जाता है। चलो आज इनकाउंटर कर दिया। जाओ शेरा, भागो और मदद बुलाओ। राहिम अब भी मजाक के मूड में था, लेकिन दानियाल को गुस्सा आ चुका था। उसने एक साथ पूरी 4 गोलियां शेरा के सीने के आर पार की और फरियाल के हाथों से पानी का ग्लास छूटता ज़मीन पोस हुआ। उसकी चीखें निकल गई। राहिम एक झटके से पहले उस तक पहुंचा। उसने खौफ से घबराते दोनों हाथ अपने कानों पर रखे। राहिम ने उसके पास बैठ उसे हिसार में लिया। बस मेरी जान, सब ठीक हो चुका। सुनहरा के साथ जो इसने किया, इसके बाद हम इसे किसी कानून के आसरे नहीं छोड़ सकते थे। उसका सर थपथपाते वो उसे खुद के साथ लगाए हौसला दे रहा था। अब कमरे में मुकम्मल सकूत छा चुका था। चलो आओ यहाँ से निकलो, अपने कमरे में चलते हैं। उसने फ़ौरन फरियाल को बाजू से पकड़े उठाया। फरियाल तो सिर्फ एक नज़र ज़मीन को देखने लगी जहाँ खून ही खून बिखरा था। इससे पहले कि वो शेरा की तरफ देखती, राहिम ने सूरज से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। मत देखो, नहीं देख पाओगी। वो जानता था कि ये कितना भयानक नज़ारा होगा। 4 साल पहले जितना भयानक नज़ारा देखा था उससे ज़्यादा नहीं होगा। फरियाल तल्खी से बुड़बुड़ाए, जो राहिम सुन चुका था। उसने शेरा को देखने की कोशिश नहीं की, बस उसके साथ कमरे से बाहर निकल गई। और अब दानियाल और अरमान मिलकर उस कमरे का किया हशर साफ करने वाले थे। जब जुल्म हद से बढ़ जाए ना, तो फिर जालिम के साथ जुल्म ही 16 साला बच्ची को करना पड़ता है। उसने एक मासूम को तकलीफ़ दी तो फिर उन तीनों ने भी उसे वही तकलीफ़ दी। फरियाल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई। उसे बहुत वक्त लगा था उस नुकसान से उभरने में। उस वक्त वो राहिम के साथ खड़ी थी और बेयकीनी से उस इमारत को देख रही थी जहाँ पर सुनहरा वेलफेयर होम लिखा था। आज उसने अपनी दोस्त का ख्वाब पूरा कर दिया। ये बच्चों का यतीम खाना था। वो बहुत खुश थी। राहिम ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। मैंने आज जूनी की ख्वाहिश पूरी कर दी। उसकी रूह को कितना सुकून मिला होगा। राहिम ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करती वो नम लहजे में बोली, खुदा उसकी रूह को हमेशा सुकून ही दे। राहिम ने संजीदगी से कहते बहुत बड़ी इमारत को देखा। ये उसने खुद तैयार करवाई थी। अंदर चले? उसने फरियाल को कंधों से पकड़े पूछा तो फरियाल ने नम आंखों से मुस्कुराते इस्पात में सर हिलाया तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। राहिम ने उसे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था। फरियाल इम्प्रेस हुए बगैर न रह सकी। उनकी ज़िंदगी से अब शेरा बहुत दूर जा चुका था, लेकिन सुनहरा की मौत की तकलीफ़ फरियाल सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती थी। कुछ ज़ख्म इंसान को कभी नहीं भूलते। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिनसे इंसान कभी भी इनहेल नहीं कर पाता, जो वक्त के साथ साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ और उनके निशान वजूद पर ही रहते हैं। राहिम की मोहब्बत ने फरियाल को इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर निकाल लिया था। बेशक बेहतरीन है वो मर्द जो अपने घर की औरतों की हिफाजत करना जानता हो।